how these 10 businesses are managed? If you do something which you love, you always excel in that. I did my masters in Canada in hospitality only. And what I realized abroad, it's all about practical exposure and learning, which lacks there in India. So when I came back to India, I realized that we have so many restaurants running, we have a hotel of our own, we have a resort of our own. So why not use these things and create a course in which students can get that practical exposure. It's I can say I have a family of 100 and we have almost 100 children also. Hotel industry is all about serving others. हमारे यहाँ भी खाने के साथ फूड प्रोडक्शन के साथ they play with it. गड़बड़ होता है, कुछ इनोवेट होता है, तो दैट इज वेयर द रियल लाइफ लर्निंग इज. हॉस्पिटैलिटी किसको नहीं पसंद है. जैसे मैं एक रेस्टोरेंट गया और वहाँ मुझे खाना चाहे जितना अच्छा हो, अगर सर्विस अच्छी नहीं हो तो मुझे रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है. बिल्कुल. बिकॉज दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग योर एक्सपीरियंस. खाना तो आप घर पे भी मंगा के खा सकते हो. Welcome to Empowering You by MediaGut. So today in this session we have an amazing personality who runs 6 restaurants, 1 hotel, a resort, and the most important, a hotel management college. Yes, we have Mr. Chaudhary Talib from Kolkata who runs all these businesses. So today I will be learning 2 things. One is the how you can manage a education institute and give value, and at the same time how you can manage multiple businesses and travel comfortably from Mr. Talib sir. So Talib sir, thank you so much for coming to our Jodhpur office and visiting to us and giving time for this podcast. Most welcome. It's my pleasure to be here. Yes sir. So first I would like to ask, for an institute point of view, how the idea of this institute started. So, if I talk about myself, I was born and brought up in Abu Dhabi, UAE, and then my hometown is Lucknow. Okay. So, as you all know, that Lucknow is very famous for its hospitality and food. So this, spark was already always there. That खाना अच्छा लगता है and travel अच्छा लगता है. And then because of my parents, I was born there. Then I came to Lucknow. Then I did my college in Calcutta. Then I did my masters in Canada. So overall मुझे tourism travel का भी बहुत मजा आने लगा था. Okay. So I thought why not do something जो मजा आता है, because I think if you do something which you love, you always excel in that. डेफिनेटली. तो लखनऊ से कोलकाता कैसे पहुंचे? मतलब ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिटी, यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. सो हाउ यू रीच्ड कोलकाता? So basically, Lucknow 10-15 years back was a place where people after school would think कि मुझे कॉलेज बाहर से करना है. ये माइंडसेट था वहाँ पे. And similar to them, I also wanted to go out somewhere. So which place to choose, and I wanted to experience a new culture, because even when I'm traveling and जो भी मैंने बोला, I like experiencing different cultures and different food. So I felt मैं अगर दिल्ली जाऊँगा या नोएडा जाऊँगा, लखनऊ से, तो वो सिमिलर ही हो जाएगा. तो लेट्स गो टू अ कंप्लीटली न्यू प्लेस. अगेन कैलकाटा इज फेमस फॉर इट्स फूड एंड द कल्चर. सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी देयर एंड दैट्स व्हाई आई वेंट देयर. ओके. तो कोलकाता जाते ही आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, या हाउ वर द अर्लियर डेज? कहाँ से स्टार्ट किया? So basically, I did hotel management from Calcutta and I did masters with that. And I met my wife there while I was studying there, who was from restaurant business, restaurant background. And along with her, because she was a local there and me going all the way there, I was still a fresher and I didn't know the city properly. So उनके साथ मिलके we started something called Wiseout the coffee shop, which is a very famous coffee shop now in Calcutta. Okay. And along with that, business आगे बढ़ता गया. तो वाइजआउल से दूसरा यूनिट खुला, फिर तीसरा खुला, फिर इंस्टीट्यूट खुला. ऐसे कर करके सब चीज अपने आप आगे बढ़ती गई. ऑल डिफरेंट कुजीन्स रेस्टोरेंट, मतलब सारे अलग अलग कुजीन्स के रेस्टोरेंट्स हैं. जी. तो अगर मैं बात करूं एज अ ऑल टुगेदर जो हमारे फैमिली के रेस्टोरेंट्स हैं, क्रिस्टल चॉपस्टिक्स इज वन ऑफ देम, व्हिच इज चाइनीज क्विजीन. Terro Parvan focuses on the local cuisine there, which is the Bengali cuisine. Wiseout is a very famous spot now, which focuses on continental food and breakfast. ऐसी चारकोल हमने स्टार्ट किया, विच इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडियन क्विजीन रेस्टोरेंट. लेटली हम लोग ने एकदम अभी फ्यू मंथ्स पहले ही बकेट बिरयानी एक कंसेप्ट लॉन्च किया है, विच इज अ होम डिलीवरी बिजनेस ऑफ बिरयानी. एंड अलॉन्ग विद दैट आवर इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो ग्रोइंग, विच इज अ होटल मैनेजमेंट एंड culinary institute. So it's all going well. Great.
सर अब मैंने अभी जो सारे बिजनेसेस काउंट किए, इट्स अराउंड 10 बिजनेसेस जी, आपके जी, अभी जी। ऑलरेडी चल रहे हैं। जी, तो मुझे थोड़ा ये समझना है कि एक रेस्टोरेंट में भी लोगों के इतने फीडबैक रिव्यू आ जाते हैं, जी, और आप इतना ट्रैवल भी करते हो, मैं जी, रेगुलरली आपको फॉलो करता रहता हूँ। जी। तो हाउ दीज 10 बिजनेसेस आर मैनेज्ड? सो आई फील कि अगेन मैं अपने पहले आंसर पे वापस जा रहा हूँ कि हम्म। इफ यू डू समथिंग विच यू लव, तो वो हम्म। आपको काम लगता ही नहीं है। ओके। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टीम, आई मीन हम्म। यू आर एवरीथिंग व्हाट योर टीम इज। सो वी डेफिनेटली। हैव, आई थिंक आई कैन प्राउडली से वी हैव अचीव्ड अ टीम which हम्म। manages everything, and you are there just to help them, support them whenever they need you. ओके। Otherwise they are the ones who are running the show. Okay. So currently, how many team members you are managing? What's the team size of all these? So altogether, if I add up, we should be 100 plus 100 plus. in Okay. numbers. Okay. जी, तो आप रेगुलरली इनसे मीटिंग्स करते रहते हैं या इनसे कनेक्टेड रहते हैं, या हाउ बिल्कुल डज? बिल्कुल, it's like a family. It's हम्म। I can say I have a family of 100, and we हम्म। have almost 100 children also at the ओके। institute. जी, ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। बस एज अ फैमिली उनसे मिलते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, सुनते हैं। हम्म। एवरीवन गोज थ्रू प्रॉब्लम्स आल्सो, तो उनको वहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं। हम्म। एंड सेम विद अस, when ओके। we are also struggling, they come up and they help us. So it's ओके। like a family, I'll say. We don't treat each other as boss and employee. वो कल्चर ही नहीं है हमारा वहाँ पे। कोलकाता में रह के, इफ you have this type of culture, then it's totally a different thing. जी What जी I have observed and seen in Kolkata, that's again जी let's not talk about that. जी 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 जी। So overall, how did the idea of this Crystal School of Excellence came? I did my masters in Canada in hospitality only. Hmm. And what I realized, abroad, it's all about practical exposure and learning, which lacks there in India. Hmm. So when I came back to India, I realized that we have so many restaurants running, we have a hotel of our own, we have a resort of our own. So why not use these things and create a course in which students can get that practical exposure? Okay. And believe me, I can say this, that our students are way superior when it comes to confidence and situation handling, because उनको वो डेली जो ऑपरेशंस होते हैं वो पढ़ते पढ़ते वो सीखते रहते हैं। And in we take them to our resort, we take them to our hotel, it Okay. becomes their classroom. So similarly, अगर जैसे मैं आपको एक हॉस्पिटल के बारे में मेडिकल पढ़ा रहा हूँ और आपको मैं कभी हॉस्पिटल लेके ही नहीं जाऊँ और डायरेक्ट बोलूँ कि अब तुम्हें ऑपरेशन करना है, तो आपके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा और पेशेंट्स के लिए भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। Okay. तो हमारे यहाँ पे वी गिव देम कंप्लीट प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन, एंड दैट्स हाउ वी थॉट कि अगर ये सब कुछ है तो इसको यूटिलाइज करके व्हाई नॉट गिव इट बैक टू द सोसाइटी। ओके ग्रेट। मतलब स्टूडेंट ज्वाइन तो कॉलेज कर रहा है, जी बट उसको डे वन से ही आपके रेस्टोरेंट्स, होटल और बिल्कुल। इन सब का एक्सपीरियंस मिल रहा है। जी जी, तो वो कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, कॉलेज के साथ ही साथ वो वेट नहीं कर रहा है कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगा तो फिर मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा, वो कॉलेज और इंडस्ट्री एक साथ ज्वाइन कर रहा है। ओके। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत बड़े मतलब ऐसे बातें आती है कि जी पे आउट बहुत कम है जी और बहुत अच्छे से रगड़ते हैं, जी मतलब कई बार इंटर्नशिप्स में जस्ट 1000 रुपीज अ मंथ देते हैं, और जी वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स। जी। तो ये क्या, कितना सच है ये? तो देखिए ये सच है, मैं बोलूँगा कि कोई भी इंडस्ट्री में आप जब स्टार्ट करते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, मैं यही बोलता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, जो ट्रेनिंग है आपकी, वो आप एज अ वर्क मत सोचो। बिकॉज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, हम आपको अपने रेस्टोरेंट्स में एक्सपोजर दे रहे हैं, हमारा किचन लैब है वहाँ पे आप एक्सपोजर पा रहे हो, बट वी कैन नॉट स्टिल मैच द 5 स्टार लेवल, बिकॉज टिल नाउ वी डू नॉट हैव अ 5 स्टार होटल। सो 5 स्टार होटल भी आप एज अ लर्निंग उस एस्पेक्ट से जाओ, एंड वहाँ पे आप जो मेहनत करते हो, जो सीखते हो, आप अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आपको 1000 या 1500 रुपए मिल रहे हैं, वो एज अ बोनस आप समझो कि आपको जस्ट मिल रहा है, जस्ट मतलब यहाँ पे भी हम एक फीस दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं टू गेट मोर बिल्कुल बिल्कुल। लर्निंग। एंड वो लर्निंग जो आपको मिल जाती है, एक बार जो आप 6 महीना या 8 महीना या 3 महीना जो भी आपका इंटर्नशिप हो, आप जब वो कर लेते हो तो आपको होटल ऑपरेशन में बहुत आसानी हो जाती है। ओके। तो मेरे हिसाब से वो 1500 1000 वाला अपने दिमाग से ही निकाल देना चाहिए और उसको एज अ प्रैक्टिकल क्लासेस लेना चाहिए जो लॉन्ग आवर्स होंगे, बिकॉज होटल इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट सर्विंग अदर्स। हम लोग उसको सेकेंड आर्मी बोलते हैं। तो ग्रूमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, टाइमिंगली होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ही नहीं प्रॉपर हो तो आप गेस्ट को सर्विस कैसे दोगे? बिल्कुल। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, नो डाउट, बट देन अगेन आप स्टार्ट करते हो, वो आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर उससे आगे जा जाके आप मैनेजर बनोगे, फिर आप जनरल मैनेजर बनोगे, फिर आप क्लस्टर मैनेजर बनोगे, तो आप वो फोकस लेके चलो
तो ये 6 महीना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। दैट्स अ कंप्लीटली वैलिड पॉइंट। अब दूसरा ये कि स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या डाउट्स होते हैं जब वो एक मतलब होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सोच रहे होते हैं, स्टार्ट करने। जी, तो मैंने एक बेसिक देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि चलो मैं होटल मैनेजमेंट तो करूँगा, लेकिन उसके बाद क्या करूँगा? मतलब मैं क्या होटल्स जॉइन करूँगा? अब होटल्स जॉइन भी करूँगा तो उसमें क्या किचन जॉइन करूँगा या फिर मैं फ्रंट ऑफिस जॉइन करूँगा? क्योंकि ये सब सब्जेक्ट स्कूल्स में तो है नहीं। बिल्कुल। तो वो कंफ्यूज रहते हैं, या ये भी होता है कि उनको पता नहीं रहता है कि उनको वो क्या अच्छा खाना बना पाएँगे कि नहीं? घर में तो बना लेते हैं बट प्रोफेशनली बना पाएँगे नहीं। तो उसी वजह से हम एक काउंसलिंग जो करते हैं उसमें हम हम उसको लेक्चर ही बोलेंगे। हम ओके। उनको आधे घंटे का एक लेक्चर देते हैं, वो एडमिशन लें ना लें वो सेपरेट है। बट हम इंश्योर करते हैं अगर एक भी स्टूडेंट हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया तो उसकी जो कन्फ्यूजन जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने वो आप चाहिए। 100% क्लियर जी, कर जी, जी, देते हैं। जी। ओके, ग्रेट। फिर चलो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। जी। अब सेकंड, एक्चुअल में जब उसको स्पेशलाइजेशंस चूज करने चाहिए तो विच आर द मतलब जो सबसे ज्यादा डिमांड। तो अगर मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज अ होल बात करूं तो आई थिंक इन नेक्स्ट 3 years, ये मैंने आर्टिकल अभी पढ़ा है 2-3 दिन पहले, देयर बी मोर देन 10 million जॉब्स ओनली इन इंडिया। ओह। So because so many 5-star hotels are coming up every day, in every city there's a new restaurant coming up, so demand बहुत ज़्यादा है and hospitality professionals कम है। तो होटल इंडस्ट्री में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक फ्रंट ऑफिस होता है, फूड एंड बेवरेज होता है जो सर्विस का डिपार्टमेंट होता है, हाउस कीपिंग जो मेंटेन करता है जगह को, और culinary आर्ट्स फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो खाना बनाता है। तो इसमें अब स्टूडेंट को देखना चाहिए कि वो किस में अच्छा है। मान लीजिए मैं बोल दूं आज की culinary आर्ट्स जो है बहुत बूमिंग डिपार्टमेंट है, बहुत बूमिंग इंडस्ट्री में बहुत बूम कर रहा है, और खाना बनाना मुझे पसंद ही नहीं है, राइट? तो तो फिर फिर उसमें तो जाने से क्या फायदा, राइट? तो आपको वो चूज करना चाहिए। होटल इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है होटल मैनेजमेंट की कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, सर्विस देना पसंद है, तो फ्रंट ऑफिस और F&B जैसे डिपार्टमेंट आपके लिए हैं। अगर आपको इंटीरियर में इंटरेस्ट है, आप जगहों को मैनेज करने में मजा आता है, तो हाउस कीपिंग आपका डिपार्टमेंट है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप बेकरी ज्वाइन कर सकते हो, कलनरी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपकी खूबियां जो हैं वो आप प्रोफेशन में बदल सकते हो। ओके, जी। ग्रेट। दैट्स मतलब आधे स्टूडेंट्स का तो यही डाउट होता है और आपने वो डाउट सॉल्व कर दिया। जी। अब व्हेन इट कम्स टू रनिंग एन इंस्टीट्यूट, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑल अक्रॉस इंडिया देखे हैं, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। दे मतलब वो इतना अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या इतना अच्छे से उसको रन नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रोग्राम के कारण उसको फिर भी चला लेते हैं, दैट इज कि स्टडी अब्रॉड पाथवे प्रोग्राम, उनको बाहर भेजने के चक्कर। जी, जी, जी। बट व्हाई दे आर नॉट एबल टू रन देयर इंस्टीट्यूट इन देयर होम कंट्री? इसके क्या चैलेंजेस हैं? सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग कहते तो हैं अतिथि देवो भव, और हम्म। इंडियन कल्चर इज द बेस्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडियन सबके इंडियन के अंदर ही है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो यही मैं भी सोचता था कि मैं भी अब्रॉड गया था, मुझे भी अब्रॉड जाना था पढ़ने। तो मैं यही उसके जब मैं वापस आया तो मैं भी यही सोचता था कि इंडिया में अगर इतना कुछ है तो हम क्यों अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया में क्यों नहीं अच्छा समझते हैं उसको। तो आई बिलीव इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है क्लास 12 तक जैसे चलता है, बुक्स एंड प्रैक्टिकल क्लासेस, बुक्स एंड प्रैक्टिकल क्लासेस, इट्स फाइन। बट उसके बाद वो बुक्स और प्रैक्टिकल क्लास वाला जो फंडामेंटल है वो ठीक बैठता नहीं। तो जैसे मैं टिपिकल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो थ्योरी क्लासेस होते रहते हैं पूरा दिन, उसके अलावा प्रैक्टिकल हुआ 2 घंटे का, वो प्रैक्टिकल लैब में गए, वहां पे एक उनको रेसिपी पकड़ा दी गई, उन्होंने बनाया 1 घंटा, फिर वापस आए। तो दिस इज नॉट द वे यू हैव टू टीच। हमारे यहाँ जो मैंने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो क्रिएट करी है, उसमें हम स्टूडेंट्स को अगर वो culinary में हैं तो उनको हम खाने से खेलने देते हैं। जैसे हम Okay. केमिस्ट्री लैब में अलग अलग केमिकल्स डाल करके देखते थे कि क्या रिएक्शन हो रहा है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी खाने के साथ, फूड प्रोडक्शन के साथ, दे प्ले विद इट। गड़बड़ होता है, कुछ इनोवेट होता है, तो दैट इज वेयर द रियल लाइफ लर्निंग इज। तो वैसे करके ही आई बिलीव अगर हम वो अचीव कर लें कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिल रहा है, तो उनको वो एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट मिल रहा है। सक्सेसफुल है। एब्सोल्युटली। इंस्टीट्यूट्स में प्रैक्टिकल अभी भी मतलब आपने ऑब्जर्व किया है अभी तक प्रैक्टिकल्स नहीं देते हैं, जबकि मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा तो इसमें प्रैक्टिकल का ही रोल है। आई थिंक 40% प्रैक्टिकल रहता है टिपिकल इंस्टीट्यूट में और 60% थ्योरी, जो उल्टा होना चाहिए, बिकॉज ये थियोरिटिकल कोर्स है ही नहीं।
अगर मैं एमए इन इंग्लिश कर रहा होता तो लिटरेचर पढ़ना है मुझे, या मैं अगर अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करना है। ओके। बट ये जो है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें जितना ज़्यादा अगर आप 80% प्रैक्टिकल भी दोगे तो वो उतना जितना ज़्यादा आप दे सको। नो प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट की आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर के। अगर मेरे एक इंस्टीट्यूट में मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूट बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं और प्रैक्टिकल लैब मेरे पास एक ही है जिसमें 50 ही आ सकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्लासरूम में तो मैं थ्योरी क्लासेस ज़्यादा करा लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल कम होते चले जाते हैं। मतलब एक्चुअल में थ्योरी क्लासेस की जगह प्रैक्टिकल क्लासरूम्स, प्रैक्टिकल लैब्स, प्रैक्टिकल किचन्स होने चाहिए बिल्कुल, in a बिल्कुल। hotel management college rather than एब्सोल्युटली, classes. एब्सोल्युटली। And that again takes more investment rather than just creating a जी, जी। class. क्लासरूम में तो तो आपको चेयर्स डालनी है बस। हम्म, यहाँ पे आपको पूरा एवरीथिंग एवरी पर्सन के स्टूडेंट के हिसाब से सेटअप करना है। तो दिस इज़ मोर कॉस्ट कंज्यूमिंग, यू नीड मोर स्पेस, ये सब चैलेंजेस आ ही जाते हैं। ओके। सो दैट मीन्स अब मुझे ये बताओ, अगर कोई स्टूडेंट को होटल मैनेजमेंट कॉलेज कोई ज्वाइन कर रहा हो, what are the factors which he should or she should look into while joining that college? सो पहला तो है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र कितना मिलेगा और कहाँ मिलेगा। हम्म, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप हाउसकीपिंग मैनेजमेंट सीख रहे हो और उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक क्लासरूम में एक बेड रखा हुआ है जो वहाँ पे आपको हाउसकीपिंग सिखाते हैं, तो हाउसकीपिंग इज़ नॉट जस्ट बेड मेकिंग। तो मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एक कॉलेज चूज़ करना है, मैं ए फर्स्ट मेरा पहला पॉइंट रहेगा कि मैं ऐसा कॉलेज चूज़ करूँ जिनके खुद के होटल हों, खुद के रेस्टोरेंट हों, जहाँ पे मैं लाइव सीख सकूँ, मॉक नहीं। बिकॉज़ अगर मैं फ्रंट ऑफिस सीख रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ही रिसेप्शन पे मेरे बैचमेट्स उस साइड खड़े हुए हैं या मेरी टीचर खड़ी हुई हैं, मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो रियल टाइम होती है, जो रियल टाइम गेस्ट होते हैं, फिर वहाँ पे मैं नर्वस हो जाऊँगा। तो बिल्कुल। मैं फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज़ करूँ जहाँ पे अपना खुद का होटल है, खुद का रेस्टोरेंट है, जिसमें मुझे एक्सपोज़र मिलता है। जिसपे डायरेक्ट क्लाइंट आए और क्लाइंट से मैं रियल बिल्कुल, लाइफ मैं एक्सपोजर। इनिशियली देखूँ और फिर मैं वो करूँ पढ़ते-पढ़ते। तो एक हो गया ये। दूसरी चीज़ है कि जिसमें स्पेशलाइज़ेशन होता है। आज बहुत सारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो सब आपको सिखाते हैं। वेरी गुड, आप सब सीख रहे हो, लेकिन उसमें स्पेशलाइज़ेशन भी होना चाहिए कि अगर आप शेफ़ बनना चाहते हो और आप हाउसकीपिंग 3 साल पढ़ते चले जा रहे हो, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? सेकंड थिंग इज़ थर्ड थिंग इज़ जो आप मॉडर्न मॉड्यूल पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपका मॉड्यूल 15 साल पुराना है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड। ऑल द इंडस्ट्रीज हैव चेंज्ड। टेक्नोलॉजी हैज़ कम इन। आफ्टर कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। एब्सोल्युटली। सो टेक्नोलॉजी हैज़ कम इन, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम इन। सो आपको एक मॉडर्न मॉड्यूल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे है वो चूज़ करना चाहिए। Okay. To summarize, can you give them in like 3 points? What are the key 3 things? So point number 1 and the most important point is practical exposure, which is real life exposure आपको मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको मॉडर्न मॉड्यूल है, जो अपडेटेड मॉड्यूल है या फिर कोई इंटरनेशनल अफिलिएशन है, वो वाला मॉड्यूल, बिकॉज आप ये ग्लोबल कोर्स होता है। सो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी ऐसी नहीं है कि अमेरिका से अलग होती है, तो एक ग्लोबल मॉड्यूल वाला कोर्स होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वो जो एक्सपोजर है वो सेम मतलब परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। Okay, जी। got it. कुछ ऐसे मिथ्स जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, जिस पे आप कुछ लाइट डालना चाहे कि नो दिस इज नॉट द राइट थिंग। कुछ ऐसे काफी सारे मिथ्स हैं इंडस्ट्री को लेके। जैसे जी। पे एक मिथ तो जैसे मुझे पता है कि वहाँ पे अगर आपने जैसे ही होटल मैनेजमेंट चूज किया तो वहाँ पे वो वॉशरूम साफ कराते हैं, जी, ऐसा कुछ जी, कराते हैं, तो जी। जनरली क्या रहता है? तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मिथ्स जो रहते हैं आई फील दैट पेरेंट्स के रहते हैं कि मेरे बच्चे ने अभी तो इंजीनियर बन सकता था, लॉयर बन सकता था, ये तो अभी कुक बन जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, culinary कुकिंग का जो होता है वो इतनी रिस्पेक्टेड जॉब होती है, और आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप खाना हर टाइम पूरी ज़िंदगी नहीं बनाते हो, आप मेन्यू बनाते हो, स्पेशलाइज्ड फूड बनाते हो। तो ये हो गया culinary का। हाउस कीपिंग का जो आपने मेंशन किया, एक बहुत ही बड़ा मिथ होता है कि मैं टॉयलेट क्लीन करूंगा, बाथरूम क्लीन करूंगा, रूम क्लीन करूंगा। सो अगेन ये सब एक वेरी, आई विल से नॉट इवन 1% पार्ट होता है आपका उसका, बट दिस इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द प्लांट्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पेंट का कलर होना चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए। तो हाउसकीपिंग इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, इट्स नॉट जस्ट क्लीनिंग। नहीं तो ये हाउस क्लीनिंग होता, हाउस कीपिंग नहीं। ट्रू जी। ट्रू, ठीक है, ये बात तो आ गई। अब आपका इंस्टीट्यूट कैसे इंश्योर करता है दैट स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्री रेडी? जी।
So I will be very happy to say that when we started the institute, we followed this curriculum and infrastructure जैसे हमारा है, and today we get a lot of calls from hotels like ITC, Marriott, and they want our students. Reason behind that is कि they feel that when our students are coming on board, they already have experience. They are not freshers, right? So they are industry ready because they are already working in the industry while studying. Okay. Basically, these restaurants becomes their classrooms. Okay. The hotel becomes their classroom. We even take our students to our resort because we feel कि चार दीवारी में they cannot learn everything. So Okay. we teach them resort management inside the resort. Wow. We teach that's them great. bulk cooking, open fire grilling inside the resort, which is not possible in four walls. True. True. जी. मतलब इट्स अमेजिंग. मुझे लगता है मैं डेफिनेटली विजिट करूंगा कोलकाता. Absolutely, you're this. most welcome. एंड ओवरऑल आपको क्या लगता है व्हाट मतलब मार्केटिंग इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एज यू हैव स्टार्टेड अ न्यू इंस्टीट्यूट जी. एंड नाउ इट्स ग्रोइंग कंटिन्यूसली, तो इसमें मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग नया इंस्टीट्यूट खोलते हैं फिर कहते हैं धीरे धीरे स्टूडेंट्स आएंगे जी. और वो और रेफरल्स लाएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? See, I think marketing is a backbone of any business, right? अगर आप सही मार्केट नहीं कर रहे हो और मेरे दिमाग में ये है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, और मैं ये पहुंचा नहीं पा रहा हूँ लोगों तक, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? बिकॉज मुझे पता है, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको पता है, बट दिस हैज टू गो आउट टू द वर्ल्ड. सो दैट्स वेयर मार्केटिंग कम इनटू प्लेस. सेकेंड थिंग, जब एक स्टूडेंट चूज करता है, दे आर वेरी सीरियस. ये स्कूल के बाद आई थिंक द यूथ है अभी, दिस इज देयर करियर जहाँ पे उनको लेके जाता है, तो दे आर एक्सट्रीमली सीरियस. एंड नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हमारे टाइम पे 10-15 साल पहले हम उतनी रिसर्च नहीं करते थे. मुझे XYZ ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, मैं जाके देखता था, अच्छा लगा तो वहाँ एडमिशन ले लेता था, बिकॉज उतना ऑप्शन ही नहीं था. तो अगर अभी स्टूडेंट के पास इतना ऑप्शन है कि वो इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आपको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपका प्रेजेंस वहाँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. और राइट प्रेजेंस, जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए. तो आई फील कि मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है, आप इसको एज अ बिजनेस ग्रोथ चलिए तो ठीक ही है, उसके साथ ही साथ आप अपना जो आपका विजन है वो पब्लिक तक ले जाने के लिए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. जी 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 जी. ओके, ग्रेट. सो कमिंग बैक टू दैट, अब हम मार्केटिंग पे ही आ गए, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जोधपुर तक आए. जी. सो हाउ डू यू मतलब आपको मीडिया गाइड कैसे मिला, मतलब टू कनेक्ट विद यू, बिकॉज यू आर बेस्ड इन कोलकाता? जी जी. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर वर्किंग विद ऑलमोस्ट 10 months से 1 year नाउ. मुझे ऐसा लगने लगा है, आज मैं बोल सकता हूँ कि मीडिया घर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मीडिया घर के पास आया हूँ जोधपुर ऑल द वे. मुझे लग रहा है कि मैं क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की टीम है, मार्केटिंग टीम के पास. जी जी, उनके पास आया हूँ. और मुझे एकदम भी एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये मीडिया घर की टीम है. मुझे ऐसा लगा कि वेदर जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं, जो फोटो ले रहे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं, मेरा जो भी हुआ यहाँ पे, मुझे लगा ये मेरी ही टीम कर रही है. ओके. सो मैं मीडिया घर के पास आया ही नहीं हूँ, मैं तो क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पास ही आया. ग्रेट सर. जी. सो इट्स योर टीम ओनली. तो आपका 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने लिए? जी. तो मैं एयरपोर्ट पे आया, मुझे एक ग्रैंड वेलकम मिला वहाँ पे, मुझे एज अ सेलिब्रिटी फीलिंग आई. और यू नो, ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी किसको नहीं पसंद है, एंड कमिंग फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं. स्पेशली फॉर मी, अगर मैं कहीं जाता हूँ और अगर जैसे मैं एक रेस्टोरेंट गया और वहाँ मुझे खाना चाहे जितना अच्छा हो, अगर सर्विस अच्छी नहीं हो तो मुझे रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल. बिकॉज दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग योर एक्सपीरियंस. खाना तो आप घर पे भी मंगा के खा सकते हो. तो मैं जोधपुर आया, मुझे लगा कि मैं यहाँ नया नहीं हूँ और मुझे सिटी ने वेलकम किया आपके थ्रू. एंड मैंने काम के साथ एक बैलेंस पाया यहाँ पे कि काम तो हुआ, उसके साथ ही साथ मजे भी किए, एंजॉय भी किया, सिटी भी देखी. तो इससे ज्यादा मैं क्या और मांग सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. आपका टीम के साथ रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने वीडियो रिकॉर्ड्स में, क्योंकि जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि क्लाइंट्स 2-2 3-3 महीने लगा देते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ हम रिकॉर्ड करेंगे. जी. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस और कितने वीडियोस आपने शूट किए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट मैं जब आया 1.5 दिन के अंदर ही मैंने 27 वीडियो शूट कर लिए थे. वाओ. जो शायद मैं 3 महीने में भी कलकत्ता में नहीं कर पाता. ओके. एंड अगेन कोई प्रेशर नहीं लगा मुझे. मुझे ऐसे लग रहा था अपनी टीम के साथ कर रहा हूँ, मजा आता जा रहा था, बातें हो रही थी, वीडियो शूट होते चले जा रहे थे. दे वर वेरी पेशेंट.
बिकॉज कभी कभी ऐसा हो रहा था मैं एक आध लाइन पर अटक जा रहा था, बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं सर, आप फिर से बोलो। तो ऐसा भी हुआ है, मैंने एक एक लाइन 10-10 बार बोली है, लेकिन ओके दे बिकॉज दे ऑल्सो हैड अ विजन कि मुझे वीडियो ऐसे चाहिए जो शायद मैं नहीं समझ पाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। सो दे वर नॉट मे बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट बैक ऑफ द कैमरा दे वर विद मी थ्रू आउट, एंड आई थिंक वी हैव अचीव टू गेट द परफेक्ट वीडियोज, जो Great. शायद कैलकाटा में इम्पॉसिबल होता। ओके सो टीम के लिए मैं बोलूंगा कि वो दे वर विद मी थ्रू आउट, मे बी कैमरा में नहीं देखेंगे बट दे वर थ्रू आउट विद मी, एंड दे गो वेंट बियॉन्ड। जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, जो उन्होंने हमने अप्रूव करी थी, उससे ज़्यादा हमने अचीव किया, बिकॉज दे वेंट बियॉन्ड एवरीथिंग आई कुड एक्सपेक्ट। ओके ग्रेट। जी। सो मतलब टीम इज डूइंग एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्ट, नॉट इवन गुड। थैंक यू। जी। यहाँ पे आने के बाद आपको स्ट्रैटेजी लेवल पे क्या क्या चेंजेस लगे कि यस नाउ मतलब मेरा विजन और क्लियर हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, उस पे थोड़ा सा बताइए। सो सी, आई एम नॉट अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, आई एम अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। तो मेरे जहन में यही सब चलता रहता है कि स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसे बेटर करना है, हमारी टीम को कैसे अच्छा करना है। बट यहाँ पे आकर के एक दो चीज़ें क्लियर हो गई कि यू नो इंस्टीट्यूट जो है, अगर ऐसा विजन है और ऐसा हम यू नो आउटपुट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, सो इट कैन गो पैन इंडिया। तो एक मोटिवेशन के साथ वापस जाऊंगा मैं कि अब तो ये करना ही करना है, बिकॉज अगर इंडिया में आप जैसे बोलें कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट के नहीं हैं जो हम जो दे रहे हैं वो दे पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट टेक इट पैन इंडिया एंड व्हाई ओनली स्टिक टू कैलकाटा। तो अभी मेरा फोकस ये हो गया कि इसको मैं इंडिया लेवल पे इंडिया कैसे लेवल लेके पे जाना लेके है, जाऊंगा। कैसे फ्रेंचाइजीज ओपन जी करना जी। है। और लोग बोलते हैं कि अगर आपको यू नो मून को अगर आप टारगेट करोगे तो शायद आप 10th फ्लोर तक पहुंच पाओ। तो आई थिंक मैं अभी तक 10th फ्लोर टारगेट कर रहा था और आपने मुझे मून पे पहुंचा दिया है। ओह वाओ, जी जी जी। थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल आपका टीम के साथ एक्सपीरियंस सही रहा। सर्विसेज ऑफ मीडिया गट, व्हाट डू यू फील कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट्स और हो सकते हैं जिससे यू फील मोर डिलाइटेड? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट, नथिंग इज कमिंग इन माय हेड कि मैं अगर बोल सकूं कि ये चीज़ होती तो बेटर होता। एंड मीडिया घर इज ग्रोइंग, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम आई कम। एंड आपका जो विजन है और आपने जैसे मुझे मोटिवेट किया है, तो आई एम श्योर अगर आपने मुझे अपना 1% दिया तो योर 100%। तो मीडिया घर नोज व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग, एंड आई थिंक मार्केटिंग में एंड टीम बिल्डिंग में आई एम वेरी स्मॉल पर्सन टू इवन कमेंट कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। नो सर, ऐसा जी नहीं है। जी डेफिनेटली वी मतलब हमारा फोकस ये रहता है कि सारी चीजें जितनी भी हम कर रहे हैं उसमें कोर फोकस इज हाउ द क्लाइंट शुड गेट मैक्सिमम वैल्यू। जी मतलब ये कि क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि एजेंसी ये हमारे लिए एसेट है, एजेंसी कहीं इधर उधर नहीं चली जाए, हमारा काम कैसे मतलब हमारा वो विजन है और हम एक एक एक्टिविटी अगर जो कर रहे हैं या क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो उसमें फोकस ये रहता है। जी कई क्लाइंट अगर हमें छोड़ के भी जाते हैं किसी कारण से, जैसे कई बार कंपनी में पॉलिटिक्स होती है, कोई नया बंदा ज्वाइन करता है, कहता है इधर जी से जी काम जी करा लो, वो भी 3 महीने बाद 2 महीने बाद हमें वापस मैसेज करते हैं कि वी वांट टू ज्वाइन अगेन विद यू। तो जी डेफिनेटली हमारा फोकस ये रहता है कि क्लाइंट को कैसे मैक्सिमम वैल्यू दे पाए। बिल्कुल। और आप जैसे मीडिया घर चल रहा है, आई डोंट थिंक एनीवन विल वांट टू शिफ्ट ओनली, बिकॉज सी व्हाई डू पीपल शिफ्ट अगर उनको जो वो स्पेंड करते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स आल्सो ऑपरेशंस में आता है उसकी क्या वैल्यू मिल रही है, जो मार्केटिंग के गोल्स हैं उसमें क्या उनको अचीव हो रहा है। तो आई थिंक मीडिया घर, इफ मीडिया घर इज गिविंग बियॉन्ड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग एंड द गोल्स आर गेटिंग मोर because of the overall services, so no one should shift first of all. And second thing is, if you keep doing this, I'm sure media ghar will be very soon the best digital marketing company in India, maybe abroad as well. Thank you so much, sir. Thank you. So one last specific question. You are based in Kolkata, and many of the people think that in their location there is a digital agency, एंड उनको ये भी लगता है कि यार कोलकाता या बाहर दिल्ली से ये कंपनी एक अलग लोकेशन में, हाउ थिंग्स विल मैनेज। तो अभी तो आप मीडियागढ़ को जानते हो, इससे पहले व्हाई यू चूजन मीडियागढ़ व्हाइल स्टेइंग इन कोलकाता? सो एज आई सेड दैट थिंग्स हैव चेंज्ड। अगर मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो अपडेटेड होना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमें भी बॉर्डर से बाहर निकलना चाहिए।
अगर हम इंडिया में रहते हैं और एक कंपनी आपको लग रही है जो जोधपुर में है हम्म, और वो बहुत अच्छी है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग शुड स्टॉप यू, बिकॉज अगेन आज की डेट में फिजिकल मीटिंग आपको तो चाहिए ही नहीं। कोविड में हमने सब सीख लिया कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है, तो व्हाई नॉट टेक गुड थिंग्स आउट ऑफ दैट पीरियड एंड यूटिलाइज दैट। ट्रू। एंड दिस वाज वन थिंग व्हिच आई फेल्ट कि आई मीन आप कलकत्ता में हो कि नहीं हो, हाउ डज इट मैटर? अगर आप मुझे अच्छा सर्विस दे रहे हो तो आप जोधपुर में हो या नीचे साउथ में कन्याकुमारी में भी हो, तो इट शुड नॉट बॉदर मी एट ऑल। एंड आई एम गेटिंग व्हाट आई एम वांटिंग and I'm happy to be here also in Jodhpur. And again, everything is so easy now in India. आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है। और एक चीज और भी मैंने सीखी कि सिर्फ अगर आप कोई भी मीडिया एजेंसी ले लेते हो और आप सोचते हो कि अब यही सब कुछ करेगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। आपको भी आपको अपना मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा। 50-50 है, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी अपना विजन फ्रीक्वेंसी सब चेंज करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक बाउंड्रीज जो हैं वो सिर्फ स्टेट की हैं, और यू कैन गो पैन इंडिया अगर आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो। अगर मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आज क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कलकत्ता से बाहर लेकर के जाऊंगा, तो फिर तो उसमें भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि बाहर कैसे लेके जाऊंगा। ट्रू ट्रू। जी जी जी, तो यही है। तो आई डोंट थिंक स्टेट बाउंड्री शुड मैटर एट ऑल। एंड आप पीपल कैन ट्रैवल, पीपल डोंट नीड टू ट्रैवल ऑल्सो, सब कुछ एवरीथिंग कैन हैपन ऑनलाइन। वाओ, ग्रेट। चलो ये तो हो गया। अब ये बताइए कि ओवरऑल आपको डेजर्ट सफारी में कैसा मजा आया कि नहीं आया? ओवरऑल डेजर्ट सफारी वाज अ पार्ट। हाँ। ओवरऑल जो मुझे जोधपुर का एक्सपीरियंस मिला है इस बार, अपार्ट फ्रॉम वर्क, आई एंजॉयड बीइंग अ लोकल हियर। एंड मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया जो अगर मैं जोधपुर में रह रहा होता तो करता। एंड मुझे बहुत मजा आता है ट्रैवल करने में एंड एक्सपीरियंस शेयर करने में, एंड देखने में कि अलग अलग सिटीज में कैसे खाना होता है, कैसे सर्विस होती है, कैसे कैसे अलग तरह के आइडियाज लोग आते हैं। और जैसे डेजर्ट सफारी की बात करूं तो वहाँ पे बहुत लर्निंग मिली मुझे कि ऐसा भी कुछ होता है जहाँ पे बॉन फायर है और खाना अच्छा है, लोकल खाना है, और डेजर्ट सैंड ड्यून्स में आप एक्सपीरियंस करोगे। तो इट वाज जस्ट ओवरऑल अ वंडरफुल एक्सपोजर एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग। तो नेक्स्ट कब आ रहे हो आप हमारे पास? मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। ओके। नहीं तो नेक्स्ट का मेरे हिसाब से आप टिकट करवा ही लो, बिल्कुल, ताकि नेक्स्ट 45 डेज में अगेन यू कम। हमारे पास कुछ चीजें अभी भी है जो पेंडिंग है, हम विजिट नहीं कर पाए ड्यू टू द टाइम लिमिट। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यू फेल्ट ग्रेट ना? एब्सोल्युटली, आई फेल्ट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दी, बिकॉज मेरा प्राइम फोकस था कि मैं एक वर्क ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं लगा कि मैं डेजर्ट सफारी कर रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, वर्क पीछे रह गया। दैट वाज अ रिवॉर्ड एक्चुअली कि आपने अपने वीडियो शूट्स कंप्लीट किए। जी जी जी, फॉर दैट इट वाज अ रिवॉर्ड। जी जी जी। तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? डेफिनेटली डेफिनेटली। व्हाट्स ओवरऑल when you had an interaction with me, with team, so what are the key points of inspiration जो आप लेके जा रहे हो और उसे आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो? सो आपकी अगर मैं बात करूँ तो आई फेल्ट कि यू आर नॉट जस्ट डूइंग यू नो मार्केटिंग फॉर मी। आई फेल्ट कि यू आर ऑल्सो हेल्पिंग मी एज अ कोच कि ये करो, इससे बेटर होगा। वी डिस्कस्ड कपल ऑफ थिंग्स। आपने मुझे बोला कि ये जो आप कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, आप ऐसे इसको करो। सो एंड ऑफ द डे यू नो दीज आर द सजेशंस व्हिच मे बी यू नो आई कैन नॉट हैव दैट फीलिंग कि जो मैं जो कर रहा हूँ वही सब परफेक्ट है। तो यू शुड ओपन अप, एंड दिस इज व्हाट ऑल्सो आई एम लाइकिंग कि अगर मैं बंगाल में ही होता या यू नो वेस्ट बंगाल या इन एंड अराउंड एरिया में रहता, तो आई थिंक व्हेन यू गो पैन इंडिया, जैसे आप जोधपुर से हो, राजस्थान से हो, तो आपकी में भी थिंकिंग अलग है और मेरी थिंकिंग अलग है। और आपने इतना बड़ा ब्रांड ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और आप इसको और बड़ा कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप शेयर कर रहे हो। दैट इज नथिंग टू डू विद कि हम सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, and as a friend I'll say, or you know as a colleague I'll say, so because we are one only. So this is something which is extremely important. Second thing is I'll comment again on MediaGhar's team, because any business is what its team is all about. And again the team is also वो आपकी होकर के काम कर रही है। बिल्कुल। मुझे जैसे मैंने बोला कि मुझे नहीं लगा कि मीडिया घर के साथ मेरा एसोसिएशन है और वो हमारा इंस्टीट्यूट का पेज चला रहे हैं या वेबसाइट चला रहे हैं तो वो ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसे ही लगा कि वो मेरी टीम है विच इज पुटिंग देयर 110% कि मेरा जो वीडियो बनेगा वो परफेक्ट बने। ऐसा नहीं कि उनके पास 10 और काम है तो जल्दी जल्दी वीडियो बना करके वो उस काम में चले जाते हैं। दे केप्ट वेटिंग बियॉन्ड ऑफिस आवर्स आल्सो
एंड दे एंश्योर कि मेरा ट्रिप सक्सेसफुल हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं 3 दिन का जो ट्रिप था वो मैंने 1.5 दिन में ही उनकी Complete. वजह से अचीव कर लिया था। जी जी So thank you Talib sir for your time, and most importantly thank you for trusting us जी कि आपने मतलब वहां से हमें ट्रस्ट किया। एंड आई थिंक आपने मीडिया गढ़ को सर्च कैसे किया था? यूट्यूब पे यू सॉ वन जी, वीडियो? आई थिंक आपका एक वीडियो देखा था मैंने। एंड हम्म अगेन आई आल्सो कीप वाचिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस। तो मैं हम्म ऐसे ही एक दिन सर्च कर रहा था कि मार्केटिंग क्या होनी चाहिए। जैसे मैं हम्म मार्केटिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो एक इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हम्म एंड आपका वीडियो मुझे वहाँ पे मिला। फिर मुझे हम्म मिला कि आपका एक मीडिया एजेंसी है। तो हम्म पहले मैंने आपको देखा, फिर मीडिया घर के बारे में पता चला, तो मैंने खुद हम्म से अप्रोच किया। एंड हम्म थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस, एंड टुडे वी आर हैप्पी वर्किंग विद मीडिया घर। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, एंड डेफिनेटली मुझे भी ये लगता है टीम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी आज जहां पे भी मीडिया गढ़ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इट्स टीम मेंबर्स, एंड टीम एब्सोल्युटली। मेंबर्स का जो विजन है कि हाँ हमें यहाँ तक जाना है। सो डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट हम वापस फिर कोलकाता में करेंगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स विजिट करने का, रिजॉर्ट विजिट करने का बहुत शौक है। तो डेफिनेटली वी विल जी, विजिट जी, दैट। you're most थैंक welcome. यू। Yeah, thank you so much.